Good morning children. In previous class we discussed exercises of chapter 5. Now today I am going to continue chapter 6 and topic is photosynthesis. Leaves are the kitchen of the plant. They require water, carbon dioxide gas and sunlight for making food. The chlorophyll present in the leaf absorbs the energy of the sun. Carbon dioxide enters from the atmosphere through the stomata. The roots of the plant absorb water and minerals from the soil and send them to the stem. The stems transports these to the leaves. The process by which green plants make their own food using water and carbon dioxide in the presence of sunlight is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means to manufacture. The prepared food is carried by the veins and the stem to all parts of the plant. Leaves are called the kitchen of the plant because they prepare food for plant. Leaves in the presence of sunlight, water and carbon dioxide, they prepare food. Okay? The chlorophyll present in the leaves, it absorbs the energy of the sun and with the help of water and carbon dioxide, they prepare food. And carbon dioxide they get from the atmosphere. This carbon dioxide enters into the leaf through the stomata. And the roots of the plants, they absorb water and minerals from the soil. And they send this water and mineral to the different parts of the plant and to the leaves through stem. The process by which green plants prepare food in the presence of water, carbon dioxide and sunlight is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means to manufacture, to prepare. This prepared food is carried by the veins present in the leaves and the stem to the different parts of the plant. Leaves को हम plant का kitchen कहते हैं. Kitchen क्यों कहते हैं? क्योंकि kitchen में खाना बनता है और लीव्स में भी प्लांट्स के लिए खाना बनता है. ये लीफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की एनर्जी के द्वारा खाना बनाती हैं और उसके बाद जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर फूड. ठीक है, अब आपको मैं डायग्राम के द्वारा बताती हूँ. लीव्स जो है ये सन की एनर्जी ठीक है, और यहां पर से वाटर, ये वाटर एब्जॉर्ब करती हैं. वाटर स्टेम के थ्रू, रूट्स जो हैं ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और ये वाटर स्टेम के थ्रू लीव्स और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है. ओके, और ये लीव्स एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है लीव्स को? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सन की एनर्जी और वाटर, मतलब ये दोनों वाटर के साथ मिक्स होकर के यहाँ पे फूड बनाती हैं और फूड के साथ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस निकलती है जो एटमॉस्फेयर में जाती है. एनर्जी जो क्लोरोफिल है, लीव्स का जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. अगर लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो सन की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी. तो ये लीफ कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स के द्वारा जो वाटर होता है वो और क्लोरोफिल के द्वारा जो एनर्जी सन की मिलती है उसके साथ मिल करके फूड बनाती हैं. फूड के रूप में आप आगे बताएंगे आपको शुगर बनता है और खाना बनने के बाद, मतलब यहाँ पे इनका जो फूड प्रिपेयर होता है उसके बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. यह ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है. ये ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस.
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर, टू प्रिपेयर। ओके, लाइट के द्वारा लीव्स मिल करके क्या बनाती है? फूड बनाती है। क्या प्रिपेयर करती है? फूड। दैट इज वाई लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। ओके, now the process by which green plants make their own food using water and carbon dioxide in the presence of sunlight is called photosynthesis। फिर ये जो prepared food, यहाँ पे जो ये food है, यहाँ पे क्या बनता है? food बनता है। यह जो prepared food है ये leaves की veins के through और stems के through ये plants के different parts को चला जाता है। okay? I think you all have understood this फोटोसिंथेसिस। आपको समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेसिस। अब इसमें देखिए एक्टिविटी 1 दी है, कीप अ हेल्दी पॉटेड प्लांट इन द डार्क फॉर अबाउट 24 आवर्स, कवर वन ऑफ इट्स लीव्स पार्टली विद अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर एंड कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 4-5 आवर। नाउ चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ, बॉइल द लीफ इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल, फाइनली वॉश इट इन कोल्ड वाटर एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। एक गमले में पौधा लेंगे, उस पौधे को हम सनलाइट में रखेंगे, उसकी एक लीफ को किसी पेपर से बंद कर देंगे, बांध देंगे, ठीक है। फिर उसी लीफ को हम पहले वाटर में बॉईल करेंगे, फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे। उसके बाद हम उसे धो करके उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, उसी लीफ के ऊपर जिसको हमने बांध दिया था। जिसको हमने सनलाइट के आगे नहीं रखा था उसको हमने बांध दिया था। हम आयोडीन डालने के बाद अगर वह लीफ ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाती है तब को इसका मतलब है कि उसमें वो फूड का प्रिपरेशन हुआ है, मतलब स्टार्च हुआ है। फूड मतलब फूड में क्या बनता है? लीफ में स्टार्च होता, वैसे शुगर बनता है, उससे स्टार्च बनता है, जो स्टार्च है वो लीफ में स्टोर हो जाता है। तो अगर फूड बना है तो ये लीफ ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगी, लेकिन यह लीफ ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं होती है आयोडीन डालने के बाद, क्योंकि इस लीफ को हमने सनलाइट में नहीं रखा था, इसे हमने बांध दिया था। ओके, मतलब इस लीफ को हमने कवर कर दिया था पेपर से, इसलिए इसमें फूड नहीं बना। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। PRODUCTS, products of photosynthesis। During the process of photosynthesis, sugar is formed and oxygen gas is given out. Oxygen gas is used by the living things to breathe. The process can be shown as follows. The sugar or food of the plant is used by the plant for growth, for making flowers, fruits and seeds, and for preparing damaged portions. The leftover sugar is converted into starch and is stored in leaves, fruit, seeds, roots or stem. During the process of photosynthesis, sugar is formed and oxygen is given out. This oxygen we use for breathing. Sugar of the food is used by the plant for the growth of the plant, for the repairing of the damaged parts of the plant, for making fruits, flowers, seeds. Okay, then after the growth of the plant, the left of the sugar is converted into starch, and that sugar is stored in leaves, fruits, seeds, roots or stems. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में शुगर फॉर्म होता है, मतलब जो फूड है वो शुगर के रूप में फॉर्म होता है, ऑक्सीजन गैस दी जाती है। ऑक्सीजन गैस को हम ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम ऐसे बता सकते हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर हमें कहां से मिलता है? रूट से। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। ओके, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और सनलाइट कहां से आती है? सनलाइट से क्या होता है? क्लोरोफिल, इसमें सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? शुगर
और ऑक्सीजन गैस। यह ऑक्सीजन गैस हम ब्रीथिंग में यूज करते हैं, ये एयर में चली जाती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और शुगर जो है वो लीव्स में स्टोर हो जाती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की उपस्थिति में शुगर बनता है जो कि फूड है लीव्स का, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जो एयर में चली जाती है। वाटर हमें रूट से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं लीव्स? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं। और फिर ये जो शुगर बनता है ये लीव्स के द्वारा यूज किया जाता है पूरे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। मतलब फ्रूट्स बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, सीड्स बनते हैं, और जो भी पत्तियां कट फट जाती हैं या जो भी इसके प्लांट के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं उनके रिपेयर के लिए इस शुगर का यूज होता है। फिर जो बच जाता है वो स्टार्च के रूप में लीव्स में स्टोर हो जाता है। लीव्स में, स्टार्च के रूप में लीव्स में, रूट में, स्टेम में स्टोर हो जाता है। मतलब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ये सब स्टोर हो जाता है। ओके, इसमें भी एक एक्टिविटी दी हुई है, मैं पढ़ लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। फॉर द स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, लीफ को धूप में नहीं रखनी है, फिर उसके बाद उसको वाटर से, अल्कोहल से धोना है। मतलब लीफ को आपको सनलाइट में रखना है। सनलाइट में रखने के बाद आपको लीफ को वाटर से पहले बॉईल करना है, फिर अल्कोहल में बॉईल करना है, फिर उसके बाद लीफ को निकाल के पानी से धोना है, फिर उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है लीफ में। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद लीफ ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाती है। ब्लू ब्लैक में टर्न होने का मतलब है कि इसमें स्टार्च है, मतलब सनलाइट। दिस मच फॉर टुडेज सेशन। योर होमवर्क इज यू हैव टू डू बोथ द एक्टिविटीज एट होम। आपका होमवर्क ये है कि आपको एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 घर पे करनी है और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। ओके, नाउ in next class we will discuss energy flow in the living world. Okay, till then stay safe, stay at home, take care, keep on learning. Thank you children.